I welcome you all to the last section of the practice paper that we are discussing. It is section E and it has long answer type questions. There are 5 markers in this particular section. So the last section has a total 15 marks devoted to it. Okay. So as you can see here, the following questions are long answer type and they carry 5 marks each. इसमें question number 31, 32 and 33 will be discussing. Question number 31, as you can see, it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts. And you have to do any 5. Now in the latest, according to the latest sample paper, next year, if you compare the paper with this year's or previous year's paper, there will be minor changes. But more or less ऐसे ही होता है. In every 5 marker there is choice, internal choice. यहाँ पे उन्होंने choice कैसे दी है, आप 7 में से कोई भी 5 parts करिए. And they have 1 marker. Each part has carries 1 mark. So to the point you have to answer. Easy है इसको करना. 5 minutes लगेंगे मुश्किल से. I just have to be sure which parts I am answering. Okay. So let us discuss all of them. First part is specify 2 factors, only 2, to which the anomalous behavior of the first member of a group of S and P block elements is attributed. आपने पढ़ा होगा कि first member of every group, like if I talk about the first group it is lithium, तो first member है, second में जाएंगे तो beryllium. They differ in their properties from the remaining rest of the members of the group. तो उसके लिए सिर्फ 2 फैक्टर पूछे हैं, कोई स्टोरी नहीं पूछी, only 2. आपको 3-4 पता है तो 3-4 नहीं लिखने, just 2. But I will be telling you more than 2 because we are revising. Okay. तो यहाँ पे the factors which are responsible are small size of atom. Second is large charge to radius ratio. Third is high electron negativity. And the last, which I am telling you, most important, is the non-availability of d orbitals in the valence shell. These 4 factors are there as answer to first part A. I am repeating. Factors are, only factors I am talking about, small size of the atom as compared to other members, because as you move down the size increases. And they have large charge to radius ratio, क्योंकि radius increase होता जा रहा है down the group, and charge will remain the same for members of that group. तो ये ratio will keep on decreasing. तो maximum किसकी हुई, first member की. High electron negativity and non availability of d orbital, मतलब उसमें वैलेंस शेल में d orbitals नहीं होते. अब ये 4 हैं, 1, 2, 3, 4. आपको कोई 2 ही लिखने हैं और अगर एक पूछेंगे तो एक ही लिखना है. नेवर एवर डू दिस कि हमें ज़्यादा पता है तो हम सारे लिख के आ जाएंगे. योर आंसर में बी क्रॉस्ड ऑल्सो, एकदम 0 दे देंगे. तो ये मत करना. आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो बी पार्ट, एक्सप्लेन द टर्म कोवलेंट रेडियस विद एन एग्जाम्पल. सो कोवलेंट रेडियस क्या होता है? सपोज आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन, Cl2. So 2 Cl atoms, they are making covalent bond with each other. So what is covalent radius? It is the distance between the centers of 2 identical atoms which are joined by a single covalent bond to make a molecule. This is the half of the internuclear distance of 2 Cl atoms. So this is the answer for B part. Now C. Zinc, cadmium and mercury are placed in the D block of the periodic table, but we do not consider them as the transition elements. Justify. So what are transition elements? Those which have incompletely filled D orbital. But अगर आप zinc, cadmium और mercury को देखेंगे, even in their +2 ionic state, they have fully filled D orbital. आप इनकी configuration देखेंगे, n-1 D 10 एंड NS2 होती है. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर देगा, स्टिल n-1 D10 होती है कॉन्फ़िगरेशन, NS0. तो इसका ये अभी भी इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है. सो इट इज़ नॉट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज 3.
Okay, so this is the answer for C part. Now let's go to the fourth one. On what observation Henry Moseley proved that atomic number is a more fundamental property than atomic number? Mistake in the question. Atomic number is a more fundamental property than atomic number? No, it has to be mass here. Typing error. Okay, so we know that atomic number is a more fundamental quantity. उसी पे अब चल रहा है सारा classification इतने सालों से. So this is the correction in the question. Doesn't matter. Henry Moseley, what he observed? क्या observe किया था? X-ray spectra elements का study किया, and he found that a plot of square root of frequency, and it was plotted against atomic number Z, and he got a straight line. When he was doing the same thing with atomic mass in place of number, he was not getting a proper relation between them, so he came to the conclusion that atomic number is a more fundamental quantity. Again, I'm telling you, all these answers are there in your NCERT. If you read, you'll definitely get the answers there. E part. Give the decreasing order of screening effect of electrons of s, p, d and f orbitals of a given shell of an atom on its outermost shell electrons along with reason for the same. अब वो ये बोल रहे हैं कि एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स व्हेन यू आर कंपेयरिंग, तो देर इज डिक्रीज इन द स्क्रीनिंग इफेक्ट व्हेन यू मूव फ्रॉम एस टू एफ. व्हाई दैट? सो s orbital has maximum screening effect. That means the reason is s orbital is closest to nucleus, and there is more electron density. So s and p, they have higher density of electrons, and they can shield more effectively than f and d orbital, because in d and f the orbitals are diffused, so density कम होती है. S and P are very close to nucleus. S is closest to nucleus, तो उसकी तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग हो गई. It is spherical in shape. एंड दूसरा आप पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेट करके, एज आई जस्ट टोल्ड यू. एफ पार्ट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन. इसके लिए आप बताएंगे कि फ्लोरीन एटम्स आर स्मॉलर. स्मॉल होने की वजह से क्या होता है कि जो एफ विच इज स्मॉल इन साइज, स्मॉलर देन क्लोरीन, उसमें व्हेन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कमिंग, देन इट फेसेस मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. इलेक्ट्रॉन जो अंदर आ रहा है उसको ऑलरेडी जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. इफ़ यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ठीक है. सो यू विल राइट 1s2 2s2 2p5. अब ये जो p5 ऑलरेडी है क्लोरीन में, ये होगा 3p5. 3p इज बिगर इन साइज. वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलेगा, बट मच लेसर देन 2p, बिकॉज 2p इज वेरी स्मॉल इन साइज जो फ्लोरीन का है. दैट इज वाई द रीजन इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर मोर इन केस ऑफ फ्लोरीन. दैट्स वाई उसमें आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is less negative, कम रिलीज होगी, because some energy will be used in overcoming those repulsions. Okay, last is what is the atomic number and symbol for unquadium. 1, ये भी 1, क्वाडियम होता है 4 के लिए यूज, तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर. सो दिस IUPAC system we use for writing the name of those atoms which have more than 100 एटॉमिक नंबर. तो ये 114 हो गया, और आप फर्स्ट लेटर ले लेंगे अन का और क्यू. UQ इज द सिंबल फॉर दैट. सो दिस कंप्लीट्स 31st क्वेश्चन. आपको ये 7 में से कोई भी 5 करने हैं. आपको जिसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे उसको छोड़ के आप जिसमें श्योर हैं वो वाले 5 कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 इज हैविंग 2 पार्ट्स A and B. या तो ये 2 करने हैं या आपको ये वाले 2 करने हैं. देर इज अगेन इंटरनल चॉइस. इन 5 मार्कर यू हैव चॉइस इन ऑल द 3 क्वेश्चंस. सो इफ आई डू द अपर वन, ये वाला, मैं तो दोनों ही डिस्कस कर रही हूँ, आपको जो बेटर लगे आप वो वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. सो यू हैव 2 marker and 3 marker, total 5, right? Let's start it. Consider the following reaction
BF3 reacting with F minus to give BF4 minus. Is there any change in the hybridization? Yes, there must be a change. यहाँ पे तो ये sp2 है. I hope hybridization निकालनी आपको याद है. Boron is making 3 single bonds. There are no lone pairs, तो sp2 हो गया. And from the reaction it is clear कि वो BF4 minus में convert हो रहा है. तो BF4 minus में जब convert हो गया तो sp3 हो गया. So there is change in hybridization for sure. And then explain आपने ऐसे कर दिया, या आपने BF3 की हाइब्रिडाइजेशन दिखा दी. उसके लिए आप B का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. B इज़ 1s2 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, राइट. तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5. 1s2 2s2 2p1 आपने लिख दिया. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं बस. सो आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s एंड आई हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन 2p. ओके, तो हमने ये कर लिया. Now, when it is making bond with 3 fluorine atoms, so it must be having 3 electrons like this. sp2 हो गया. Now this p orbital is empty. So when F minus is coming, तो उसका F minus electron pair will come here. और यहाँ पे I will be getting sp3 then. So this is how you can explain this. 2 marks पूरे इसमें. फिर आपका आ गया 3 मार्कर. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ज्योमेट्रीज ऑफ दिस एंड दिस एज पर VSEPR थ्योरी, गिविंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. सो AlCl3, if I explain using VSEPR theory, Al has 3 bond pairs around it, no lone pairs. So it will be AB3 kinds, no lone pair, 3 bond pairs. So it is trigonal planar, as you can see here. जब लोन पेयर नहीं होता तो शेप और ज्योमेट्री सेम होते हैं. तो इसके दोनों ट्राइगोनल प्लेनर हो गए. एंड देर आर नो लोन पेयर, दैट आई जस्ट टोल्ड यू. व्हाट एल्स इज देयर? ज्योमेट्रीज हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गया. ओके, अमोनिया. इन अमोनिया we have nitrogen with a lone pair. If you write the configuration and you remember the structure, तो इसमें क्या होता है, इसमें ज्योमेट्री तो आपकी हो गई टेट्राहेड्रल, बट शेप हो गई पिरामिडल. सो दे आर आस्किंग यू ज्योमेट्रीज ओनली विद द एक्सप्लेनेशन. तो एक्सप्लेनेशन यही है, इट इज AB3E काइंड्स. E मतलब एक लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स. सो दिस इज हाउ दे आर अरेंज. सो इस ज्योमेट्री इज, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट लाइक दिस, इट इज टेट्राहेड्रल. आप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी लिख सकते हो. डिस्टॉर्टेड में ये होता है कि एंगल इज नॉट एग्जैक्टली जितना रेगुलर टेट्राहेड्रन का होता है, बट आप टेट्राहेड्रल भी लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, नाउ द चॉइस इज देयर. कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. द रिएक्शन इज अमोनिया रिएक्टिंग विद H प्लस एंड दिस. अगेन ऊपर वाले की तरह ही आपसे पूछ रहे हैं, इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे जब आप हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, एज यू कैन सी हियर 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर्स, तो ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड. आप कॉन्फिगरेशन लिख के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. And when it is converting to NH4 plus, then what is happening? It is reacting with H plus. It is taking H plus and converting to this. अब H plus के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसका ये लोन पेयर यूज हुआ बॉन्ड बनाने में. So अब क्या हुआ, आपका लोन पेयर का बॉन्ड पेयर बन गया. That is the only difference. But do you think the hybridization will change? The hybridization will not change. ये भी sp3 ही है. So there is no change in the hybridization and we have explained like this. ये पहले लोन पेयर था, 1 और 3 बॉन्ड पेयर थे, अब 4 बॉन्ड पेयर्स हैं. सो इट इज sp3 ओनली. आफ्टर दैट 3 मार्कर B is out of N2, N2 plus, O2, O2 plus, O2 minus, which is the most stable and the least stable species. Explain using MO diagram or configuration. अब ये ध्यान देने वाली बात है, डायग्राम में ज़्यादा टाइम लगता है. आप पूरा ड्रॉ करेंगे बॉक्सेस टू शो ऑर्बिटल्स एंड दिस एंड दैट, उससे बेटर है कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो. ओके, सो व्हेन यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन एज आई हैव शोन हियर, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2. आई विल सजेस्ट दैट इन एग्जाम डू नॉट राइट शॉर्ट फॉर्म्स. जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया है MO, आप पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. एंड आई एम टेलिंग यू कि इट्स बेटर कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो. वो भी सिर्फ तब है व्हेन देयर इज़ एन ऑप्शन इन द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देयर इज़ एन ऑप्शन दैट यू एक्सप्लेन इट यूजिंग MO डायग्राम और कॉन्फ़िगरेशन. अदरवाइज तो जो स्पेसिफिकली लिखा होगा वही करना है. तो यहाँ चॉइस है, तो इट इज़ बेटर.
So once you write this configuration, they are obviously in the increasing order of energy like this, right? If you calculate the bond order, I hope you remember how to calculate bond order. That is half of number of electrons in bonding orbitals minus number of electrons in anti-bonding orbitals. तो आप यहाँ से देख सकते हो from the configuration that 2, 4, 6, 8, 10 electrons are there in the bonding orbital, और जिसमें ऊपर स्टार लगा हुआ है, they are anti-bonding orbitals. So that you can see that you have 2 plus 2, 4 and 5 and 6 in the anti-bonding orbital. So 10 minus 6 is 4 and 4 by 2 is 2. तो bond order आ गया आपका 2 O2 का. अब आप बार बार कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे, O2 को रेफरेंस लेके यू विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 प्लस. O2 प्लस में क्या होगा, आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दोगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग से कम हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज, तो इसका आएगा 2.5. सेम वे जब आप O2 माइनस का निकालोगे तो आप एक इलेक्ट्रॉन इनमें दोनों में से कहीं भी आप, बिकॉज दे आर ऑफ सेम एनर्जी लेवल, ऐड कर दोगे. तो अगर आपने एंटी बॉन्डिंग में ऐड किया इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, तो O2 माइनस का 1.5 आएगा. सेम वे राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के फॉर N2 प्लस remove one electron from the outermost orbital and then the bond order will change to 2.5. Now you have the values here which can be compared, the values of bond order. So more the bond order, more is the stability of that particular species. So you arrange them in the increasing order of bond order. और आपसे क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल आपका हो गया N2 and along with N2 there is one more which is having 2.5. तो अगर प्योरली बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाए तो इनकी सेम स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट? N2 plus 2.5 and O2 plus also 2.5. And if you see the bond order, this is the least. So O2 minus is the one which is least stable. Okay. Next question is last question of this particular practice paper, section E, question number 33. This is from organic chemistry. Draw the structures of the following compounds and write their IUPAC names. So read the question carefully. Correct IUPAC name. आपको देख के लगेगा IUPAC name तो यहाँ लिखे ही हुए हैं. Why are they asking us? That means there is some mistake in the IUPAC name. तो आपको उसको correct करके लिखना है. And if there is no mistake, then you can write the IUPAC name is correct. Okay. So the first one is 4-methyl-5-chloronitrobenzene. So you will draw benzene. नाइट्रोबेंजीन है तो NO2 लगा दिया मैंने. नाउ 4 पोजीशन पे इसके रेस्पेक्ट में 1, 2, 3, 4 आई विल पुट methyl here and then you have 5th carbon पे you can go for chloro. Now this I have written 4, 5 with reference to the name which is given here. But if you see it carefully, are these numbers correct the way we are numbering it 1, 2, 3, 4, 5? Let us see. Here, if you take as per the rules, then 1, 2, 3, 4. Why am I writing like this? Because NO2, Cl, the halogens, they do not come under the main functional groups. They are the secondary ones. So you will go clockwise or anti-clockwise, anyhow, considering any of the attachments methyl, chloro, nitro, जिससे सबको least possible number मिले. So let me quickly draw it for you again. I had drawn benzene, nitrobenzene,
and then I wrote CH3 here and Cl here. आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते थे तो आप इस साइड बना सकते थे Cl, एक ही बात है. Now as per the rule, go clockwise or anti-clockwise. You have to give the least possible number to all the substituents on the benzene ring and write them alphabetically then. This is the rule. So if I start numbering from here, 1 and I go this way, 2, 3, 4. This option is giving the least possible number to all the attachments. बाकी आप किसी से भी शुरू करके clockwise, anti-clockwise कैसे भी जाओ, इससे ज़्यादा नंबर ही आएगा. So this is the best possible option. So the name I'll write alphabetically all the attachments: 2 chloro, 1 methyl, 4 nitro, benzene. So this name was definitely incorrect. Next is 2 ethyl. जब भी कभी सेकेंड कार्बन पे इथाइल आए, दैट मीन्स आपने कार्बन चेन रॉन्ग चूज करी है. दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट यू हैव चोजन. अदरवाइज सेकेंड पे तो इथाइल आ ही नहीं सकता है कभी. सो लेट अस ड्रॉ इट फर्स्ट. ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन्स. ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड. सपोज आई नंबर फ्रॉम हियर, तो सेकेंड पे आप लगा लीजिए इथाइल, CH2, CH3. फिफ्थ पे और सेवन्थ पे मिथाइल, 1, 2, 3, 4. फिफ्थ इज दिस एंड सेवन्थ इज दिस, दोनों पे मिथाइल. एंड देन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोला है तो उसको हाफ वे नहीं छोड़ना. यू हैव टू पुट हाइड्रोजन्स एंड कंप्लीट द टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ ईच कार्बन. सो आई हैव डन दैट. राइट, नाउ सी, the longest carbon chain is not the straight one. सेकेंड पे इथाइल नहीं आ सकता. दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नाउ. अब ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो पेरेंट कंपाउंड ही रॉन्ग है, नोनेन होगा ये. अब नोनेन में क्या होगा? इफ आई कम फ्रॉम हेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th carbon has methyl and second and fourth carbon, they are having methyl on them. If I start counting from this side, तो थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ एंड एट्थ पे है. तो 3, 6, 8 इज़ अ बेटर ऑप्शन, और 2, 4, 7 आप ऐड करके देखेंगे तो स्मॉलर नंबर विल बी द ऑप्शन 2, 4, 7. लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल. तो हमारा कंपाउंड हो गया, दिस इज रॉन्ग नेम, 2, 4, 7 trimethyl nonane. This is the compound that we are talking about. So this is the correct IUPAC name that I have written. Now this was for 2 marks and this is a 3 marker. It's a numerical. Dumas method for estimation of nitrogen. You have 0.20 grams of an organic compound and it gave 30 ml of nitrogen gas which is collected at 300 Kelvin temperature and 725 millimeters of pressure. Now calculate the percentage composition of nitrogen, and there is a very important information that at this temperature aqueous tension is 25 mm. जब भी आपको किसी क्वेश्चन में aqueous tension दिया है तो आप क्या करते हैं? The solution is here. आप प्रेशर निकालने के लिए उस पर्टिकुलर गैस का, नाइट्रोजन इन दिस केस, आप टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन माइनस करते हो, देन यू गेट द प्रेशर ऑफ दैट गैस प्योरली. तो आपका P1 इसको हम लिख रहे हैं बिकॉज दिस इज नॉट एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस. तो हम इसको जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें उसको स्टैंडर्ड वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. दैट इज वाई हमने क्या किया, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 यूज़ किया. पुट ऑल द वैल्यूज हियर. इसको रीअरेंज करोगे तो ये आएगा कि आपका जो भी वॉल्यूम है यहाँ पे गिवन एंड वट एवर प्रेशर यू हैव, टेम्परेचर यू हैव, वो सब यूज़ करके अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस होती, क्या होती हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस? एग्जैक्टली, यू हैव 760 mm ऑफ मर्करी एज द प्रेशर, यू हैव 273 केल्विन एज द टेम्परेचर. तो अगर मैं ये वैल्यूज़ डालूँ आफ्टर रीअरेंजिंग दिस और मैं इसको कंपेयर करूँ, 700 mm, volume is 30 ml at 300 Kelvin
एंड दिस प्रेशर, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जब हम ये वैल्यूज़ डालेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा नाइट्रोजन का 25.14 ml। वाई एम आई इंटरेस्टेड इन द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। कंपाउंड हमें नहीं पता कौन सा है, बट दैट इज 0.20 ग्राम, एंड व्हेन इट इज अंडरगोइंग दिस मेथड ऑफ एस्टिमेशन, तो 30 ml उसने नाइट्रोजन रिलीज करी। उस 30 ml को लेके हमने आगे कैलकुलेशन की कि स्टैंडर्ड कंडीशन में वो कितने ml होगा, एंड देन परसेंटेज कैसे निकाली। इफ यू टेक N2 1 मोल under standard conditions, it has the volume 22400 ml, ठीक है, 1 मोल का, और 1 मोल का वेट कितना होगा 28 ग्राम्स। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम्स होता है इतने वॉल्यूम में। आपके पास जो वॉल्यूम है अभी आपने जो कैलकुलेट किया 25.14, उसमें कितना होगा। सो 28/22400 multiplied by 25.14, simple unitary method, and then this nitrogen is released by 0.20 gram of the organic compound। तो हमने उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की टोटल क्वांटिटी से डिवाइड किया, और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल फॉर्मूला। इफ यू डू दिस, परसेंटेज विल कम आउट टू बी दिस, so you can round it off to 15.72%, or if this value is, if you calculate again just to check if this value is less than 4, तो आप 15.71% भी रिपोर्ट कर सकते हैं अपना आंसर। so this is the numerical। नेक्स्ट इज और पार्ट। इसी क्वेश्चन में चॉइस है आपके पास। अगेन यू हैव अ 2 मार्कर एंड यू हैव अ 3 मार्कर न्यूमेरिकल हियर। आप 2 मार्कर में क्या है, IUPAC name and number of sigma bonds in the given compound. This is a bond line structure। तो मैं क्या करूँगी, जितने भी टर्न्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं सब पे मैं कार्बन लगा दूंगी। Then I'll complete the 4 bonds of each carbon by putting hydrogens there। So this is done। Now this compound is, if we see carefully, it has 1 2, I'll just write it again, हाँ जी, this is 1 2 3 4 5 कार्बन्स। Why did I start numbering from here? क्योंकि यहाँ से ये कार्बन क्लोज आएगा जिस पे OH है, this OH, एंड दिस इज अ ट्रिपल बॉन्ड। टोटल 5 हैं आपके पास कार्बन्स, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, दिस मस्ट बी पेंटाइन, बट देर इज OH ऑल्सो विच इज द मेन कंपाउंड एल्कोहल। सो पेंट 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, सो पेंट 4 आइन, YNE होता है आइन, बट मैं YN लिख रही हूँ बिकॉज देर इज OH ऑन द सेकेंड कार्बन। फॉर दैट आई राइट 2 ऑल। तो जब ये ऑल यहाँ पे आ गया तो यहाँ का E ड्रॉप हो जाता है। पेंट वाइनियोल कुछ नहीं होता, पेंट वाइनॉल। सो वेन एवर यू हैव दिस वॉवल हियर, then you have to drop E of alkene, alkyne, whatever is coming in the question. So this is pent 4-ine 2-ol। अब मुझे पूछा है that how many sigma bonds are there। Please never ever try to count the sigma bonds from such a structure। You will definitely go wrong। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो एक बारी, and then it is easy to count। You have 1 2 3 4 5 carbons। So I am drawing 1 2 3 4 5। Here you have CH3। यहाँ पे बना लो अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो। इसके 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, एक H लगा देते हैं, इसके 2 हैं H2 लगा देते हैं। इट ऑलरेडी हैज़ 4 बॉन्ड्स, कुछ नहीं लगाना, इट हैज़ ओनली 3, सो 1 H विल कम हियर। अब मैं क्या करूँगी, राइट साइड एक्सट्रीम कार्बन CH3 ऐसे बना दिया। CH3 लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है, सिग्मा काउंट करने में गड़बड़ हो जाएगी। एंड देन यू हैव CH, और OH को भी एक साथ नहीं लिखना, ONH लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका है CH2, देन यू हैव कार्बन विद अ
triple bond with the other carbon, and then you have H. Now it is easy to count. See how. You have a triple bond, तो ट्रिपल बॉन्ड में ये सिग्मा होगा और ये वाले तो पाए होंगे. मुझसे पाए भी पूछा होता तो मैं बोल देती 2 पाई बॉन्ड्स, बट नहीं पूछा. Don't give any extra information in the answer. Nobody will give you extra marks for that, but you may lose some marks अगर आपने extra information लिखी which is unwanted in the question. So that will save your time also. Okay. Be very specific, right to the point. That's it according to marks. तो मुझे पाई तो काउंट करने नहीं. ठीक है. सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So my answer is 13 sigma bonds are there. यहाँ मिस्टेक का चांस है, इसको OH लिख देते हैं, बट O और H के बीच में भी तो सिग्मा बॉन्ड है, राइट. सो यू हैव टू बी केयरफुल. कार्बोक्सिलिक दे देंगे तो आप C डबल बॉन्ड OOH ऐसे बना के काउंट करोगे. जस्ट बी केयरफुल अबाउट दी स्मॉल थिंग्स, अदरवाइज द पेपर इज नॉट टफ. ओके. लास्ट इज in Carrier's method of estimation of halogen, 0.30 gram of an organic compound gave 0.25 grams of AgBr. Find out the percentage of bromine in the compound, and the atomic mass of Ag and Br are given to you. So how will you solve it? Molar mass of AgBr आपको दिया हुआ है, Ag और Br ऐड कर देंगे, 188 ग्राम पर मोल हो गया. उसके बाद आप लिखेंगे that 188 grams of AgBr contains 80 grams of bromine. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.25 ग्राम ऑफ AgBr. आई जस्ट नोटिस्ड दैट हियर इट इज 0.24 बाय मिस्टेक. 0.25 होना चाहिए. तो 0.25 ग्राम AgBr विल कंटेन 80 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 188, राइट. हियर इट इज करेक्ट. तो जब आपने ये चीज़ लिख दी ऐसे तो आपके पास ब्रोमीन आ गया, बट वो आया कहाँ से था? इट वॉज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाउ मच? 0.30 ग्राम. तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी. 0.30 ग्राम से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया. सॉल्व इट केयरफुली. दिस इज योर आंसर. 35.46% bromine is there. So this completes the last section also. The complete practice paper I have discussed. Please go through it carefully. Practice everything by writing. Read your question paper thoroughly. 15 मिनट रीडिंग टाइम इसीलिए दिया गया है. तब कुछ मत करिए, जस्ट रीड द पेपर केयरफुली. प्लान इन योर माइंड कि कैसे क्या करना है, एंड गो सिस्टमैटिकली. सेक्शन वाइज काम करिए. सिस्टमैटिक लगता है, अच्छा लगता है, चेकिंग में मिस्टेक्स नहीं होती. एंड डोंट डू दिस थिंग दैट यू आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, फिर आपने 10 कर दिया, फिर आप 5 पे आ गए, फिर आप 23 पे पहुंच गए. नेवर एवर अटेम्प्ट द पेपर लाइक दैट. और कई बार होता है कि पीछे से स्टार्ट करना है पेपर, तो सेक्शन वाइज अच्छे से करिए. ऐसा नहीं कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन करा और फिर सेक्शन डी लिख के नेक्स्ट स्टार्ट हो गया. नेवर एवर डू दैट. सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड दैट राइट सिस्टमैटिकली. आप सेक्शन ए के 16 MCQs कर रहे हो तो उनका नंबर डालो प्रॉपर. आंसर 1, आंसर 2 टू आंसर 16 आपको बाद में करना है उसका आंसर. यू कैन कम बैक टू दैट पेज. सो मेक दिस अ हैबिट. ओके. And then you will do very well. So all the best for your exam. Thank you so much.